Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 20. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. We are still working with the or discussing the different phases of the database system development life cycle, and if you remember that we have discussed a lot of phases, a number of phases, and now if we look at the phases that we have already discussed in our previous lectures, it was requirements collection and analysis, a very important phase, critical phase. Then we discussed database design, and database design was further subdivided into three phases: conceptual, logical, and physical database design. Then we worked on a optional phase that was DBMS selection, and we discussed the different criteria for selecting a particular DBMS, or what kind of factors should be considered when we are selecting a particular DBMS. Then we discussed the application design, which was further subdivided into the transaction design and user interface designs, and we discussed different factors that should be considered, or the guidelines that should be considered when we are working with the application design and specifically user interface design. So let's start with the today's lecture, and we will start again from the next phase, that is in the database system development life cycle. The next phase that could be performed in any project, and specifically when we are talking about database system development life cycle, that is the prototyping. It's a very useful phase, and it is basically in this phase we model, or we develop or build a working model of the database system. So this phase could also help in gathering the requirements in a more understandable way, and it is a natural way by which you can model your database system. It is not a completely functional model, but it's a model, and you can show it to your customer, and then your customer can look at this model, and then you can come up with certain feedbacks कि जी आपकी कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए और कौन सी इंक्लूड नहीं होने चाहिए. तो मतलब इट्स अ क्वाइट simple way to validate or collect certain requirements for a new system. तो इसमें keep in mind कि the purpose of the prototyping is कि you identify to identify features of a system that work well or are inadequate. जी आपने उस तमाम रिक्वायरमेंट्स को या फीचर्स को मतलब आप वेरीफाई करवा सकते हो कि सपोज आपने एक डमी सा सिस्टम जो है वो बना दिया विद द हेल्प ऑफ यूज़र इंटरफेसेस एंड सम सैम्पल डाटा ऑन दोज कि जी आपका इस तरह का वो नज़र आएगा. तो मतलब ये एक आसान तरीका है जिसके थ्रू जो है वो कस्टमर भी बड़ी आसानी से समझ सकता है कि हाँ जी अच्छा ये चीज़ तो हमें चाहिए ही नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, एंड सो ऑन. तो मतलब आपको काफ़ी उस हद तक और मतलब उसको एक थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है यूज़र को, आपके कस्टमर को, कि जी जो आपका कंप्लीट या जो फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट होगी वो किस तरह की होगी. तो यू कैन डिसाइड कि जी जो आप सिस्टम बनाने जा रहे हो वो वाकई उसके मुताबिक है या नहीं. टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स और इवन न्यू फीचर्स, मसलन इट कुड हेल्प यू. अगर आपने प्रोटोटाइपिंग एक मॉडल दिखाया किसी कस्टमर को, तो दे कैन सजेस्ट सम इम्प्रूवमेंट्स, और दे कैन आस्क यू टू ऐड सर्टन न्यू फीचर्स, बिकॉज मतलब वो एक उनका इस फॉर्म में है कि वो उसको देख रहे हैं कि जी आपका सिस्टम इस तरह का होगा, तो उनको बड़ी ईजीली वो फिर उसमें से कोई भी इनपुट्स जो है अपनी दे सकते हैं. टू क्लैरिफाई द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स, या इट्स अ वेरी सिंपल वे कि जी आपके जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी आपने उसको एक्यूरेटली समझा था या नहीं यार. यू बिल्ड दैट प्रोटोटाइप अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल.
To evaluate the feasibility of a particular system design, it also basically helps you कि जी आपका जो डिज़ाइन है that is feasible, एक तरह की आपकी वैलिडेशन हो जाती है कि जी आपका डिज़ाइन जो है वो फिजिबल है, एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग ऑल the data that is required by the individual user groups. तो इस हवाले से मतलब prototyping could be very helpful. There are two types of prototyping. One is requirements prototyping and the other is evolutionary prototyping. So there is slight difference between these two types of prototyping. If we talk about requirements prototyping, so both are the working model but not completely functional, right? So you build a model and you basically present it to the customer, then customers looks at this prototype and then वो उसको okay या जो उसमें कुछ changes करने का है वो कहता है, और once you are basically finished कि जी हाँ आप your customer is agreed कि जी हाँ आपका जो प्रोटोटाइप है दैट इज़ व्हाट वी वांट, और जो हमारा नया सिस्टम होगा वो इसी तरह का होगा, तो यू जस्ट डिस्कार्ड दैट प्रोटोटाइप. फिर आप बस अब आपको मतलब आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स मिल गई, आपको उसी के मुताबिक आपने डिज़ाइन भी आपने मॉडिफाई कर लिया एंड सो ऑन. तो मतलब उसमें आप जो फिर आपका प्रोटोटाइप होता है उसको आप डिस्कार्ड कर देते हो एंड देन यू वर्क अलॉन्ग के जी आप आगे फिर इम्प्लीमेंटेशन या बाकी चीज़ें करते हो. लेकिन जो एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग होता है इसका थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से होता है कि इसमें भी वही है कि आप साथ साथ जो है प्रोटोटाइप डेवलप करते हो जब, तो प्रोटोटाइप आप कस्टमर को दिखाते हो, उस प्रोटोटाइप को फिर आप इस तरह डेवलप कर रहे होते हो कि इसी प्रोटोटाइप को आप आगे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो. तो यू डोंट डिस्कार्ड आफ्टर एग्रीइंग विद द कस्टमर के मतलब आपने जब कस्टमर को प्रेजेंट किया उसने कोई भी चेंजेस कहे तो आप उसमें जो भी फिर अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हो, और उसके बाद जो है फिर आप इसी प्रोटोटाइप मॉडल को आगे या प्रोटोटाइप को आगे जो है कन्वर्ट करते हो, मैप करते हो फिनिश्ड या फाइनल प्रोडक्ट के अंदर. तो इसमें ये वाला जो है वो डिफरेंस है कि आप इसमें जो है उसी को आगे फिर इस्तेमाल करते हो अपने फाइनल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए या जो भी आपका फॉर्म्स हैं या उस हवाले से. जो कि अगला हमारा फेज़ है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन. अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करता चलूँ कि अभी मैं वन बाय वन इन सारे फेजेस को ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है. इंडिविजुअली हम फोकस कर रहे हैं कि जी ये किस तरह किस फेज़ के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, लेकिन आखिर में जब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ लेंगे फिर हम इनको अगेन सम अप करेंगे ताकि आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि इन सारे फेजेस का क्या मकसद था और इनके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या थी और किस तरह वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती थी, एक फेज़ दूसरे के साथ किस तरह उसका रिलेशनशिप था. तो मतलब अभी मे बी एट दिस पॉइंट आपको ऐसा फील हो रहा हो कि हम एक इंडिविजुअल फेज़ को ऊपर तो फोकस कर रहे हैं लेकिन वी आर नॉट ट्राइंग टू बेसिकली रिलेट ऑल द फेजेस उसको एक सिंगल उसके अंदर. तो मतलब मैं आखिर में जाके इसको इंशाल्लाह ज़रूर इसको डिस्कस करूँगा. तो फ़िलहाल जो है आप इंडिविजुअल इन फेजेस के ऊपर ही फोकस करें ताकि आपको समझ आए कि हर फेज़ के अंदर क्या हो रहा है. जो इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ है दैट इज़ आफ्टर द प्रोटोटाइपिंग, एंड प्रोटोटाइपिंग इज़ अगेन कि जी बाज़ का तब डिपेंड करता है. मसलन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर कोई बहुत डाटाबेस कम्प्लेक्स नहीं है तो प्रोटोटाइपिंग में भी यूज़ ही ना की जाए, तो ये भी ज़रूरी नहीं है. लेकिन डिपेंड्स के लिए प्रोटोटाइपिंग कुड बी वेरी हेल्पफुल कि जी आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए या बाद में कोई मतलब डिसएग्री हो कस्टमर आपसे कि हमें तो आपने जो चीज़ बना के दी वो ऐसी नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मतलब इट ट्राइज टू ब्रिंग अ बैलेंस या एक एग्रीमेंट के ऊपर उसको वो लाने में मदद देता है कि अगर आपने प्रोटोटाइप एक डेवलप करके उसको दिखा दी तो मतलब यूज़र को आइडिया हो जाता है कि जी आपका जो एंड प्रोडक्ट होगी वो इसी तरह की होगी. तो मतलब उसको फिर उससे बहुत सारी आपको इनपुट मिल सकती है, अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो चीज़ क्लियर हो सकती है. जो नेक्स्ट हमारा फेज है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन इज द फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ द डाटाबेस एंड द एप्लीकेशन डिज़ाइन. कि अब हमने उनको जो है फिजिकली कंप्यूटर के ऊपर कैसे करना है उसको मतलब यूजिंग सम स्पेसिफिक लैंग्वेजेस कैसे जो है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर
की जाती है। तो मसलन हम अगर देखें हमारे पास जो डेटाबेस डिज़ाइन था हमारा, वो कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने डिफ़ाइन कर लिया जी हमारा इतने रिलेशंस होंगे, उनके ये एट्रीब्यूट्स होंगे, उनकी ये वाली उनकी डाटा टाइप्स या वो होंगी, लेकिन उसको अब एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वी विल बी यूजिंग बेसिकली ऑन यूजिंग सम DBMS, और DBMS के अंदर फिर हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज और उसका DDL पोर्शन यूज़ करते हुए हम जो है वो स्टेटमेंट्स यूज़ करके, या मे बी कोई हम अगर टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कोई क्लिक्स के थ्रू भी, मुख्तलिफ वो जो मेन्यू ड्रिवन ऑप्शन होती है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, या हम DDL स्टेटमेंट्स जो है उनके थ्रू जो है वो हम ये जो इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप है ये परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट वी विल डू, मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी यूजिंग DDL टू क्रिएट डेटाबेस schemas and empty database files which are nothing but tables. Use DDL to create any specified user views, and if there are certain views required at this level, so maybe you can create those views. And as you know, we have already learned how to create tables and create views. You can use those statements, and keep in mind कि जी मैंने आपको बताया कि there are always different possibilities कि जी कुछ DBMS आपको जो है वो DDL के थ्रू तो देते ही देते हैं आपको, तो कुछ DBMS जो है आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी टेबल्स क्रिएट करना या व्यू क्रिएट करना जो है वो आपको फैसिलिटी उसकी प्रोवाइड करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और मोस्ट प्रॉब्ली मतलब अगर आपको जो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू जो क्रिएशन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, वो डेफिनेटली आसान होती है एज़ कम्पेयर टू जो है स्टेटमेंट्स के। तो मे बी इट्स योर ऑप्शन कि जी आप किस पे जो है, इट्स योर ओन चॉइस। If we talk about the application design, तो application design में होगा कि we will be developing applications using some third or fourth generation language, which could be C, C++, Java, Perl, any मतलब कोई भी जो लैंग्वेज है जो आप अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए यूज़ करेंगे। एंड कीप इन माइंड कि अब जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे दे विल बी इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस, और यू नीड टू एम्बेड सम सर्टेन DML स्टेटमेंट्स विद इन दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो जो होस्ट लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर आपने मसलन अगर आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो था वो डाटा इंसर्ट करने की ऑप्शन देता है, डाटा रिट्रीव करने की, रिपोर्ट जनरेट करने की ऑप्शन देता है, तो मसलन अगर आपका एक फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम पे जिस पे सर्टेन फील्ड्स दी हुई हैं जैसे स्टूडेंट का नेम, रजिस्ट्रेशन, फादर नेम, लास्ट, और एक बटन आपको दिया हुआ है सेव, तो व्हेन यू एंटर द डाटा और जब व्हेन यू प्रेस द सेव बटन तो देन देयर विल बी अ क्यूरी ऑन दैट बटन क्लिक, और उसके ऊपर क्या क्यूरी होगी, वो इंसर्ट की क्यूरी होगी, और उन जो फील्ड्स के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो उस इंसर्ट की स्टेटमेंट में जाएंगी, और डेफिनेटली दैट इंसर्ट स्टेटमेंट वुड बी फॉर अ स्पेसिफिक टेबल जो कि स्टूडेंट होगा और उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के लिए वो वैल्यूज होंगी। तो दिस इज हाउ बेसिकली आप फिर जिस किस्म की भी आपको फीचर्स जो है उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड करनी है वो आप करेंगे। तो इट वुड बी इन डिफरेंट फॉर्म कि जी आपने अब हो सकता है बाज जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई जो हायर मैनेजमेंट है विच इज़ टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मे बी ही कैन यूज़ वो DBMS का कोई जो है वो क्यूरी वाला जो है जिसमें क्यूरीज लिखी जा सकती हैं उस के थ्रू ही क्यूरीज लिखें। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो आपके एंड यूजर्स होंगे दे विल बी इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। Next step or phase that is in our database system development life cycle is data conversion and loading. अब data conversion and loading could be मतलब in a situation when you have existing data, and most probably any organization that is whether it was working on a file based system या फिर जो पेपर बेस्ड सिस्टम पे काम कर रही है या किसी एक डेटाबेस पे कर रही है अब नई पे आ रही है, तो सारी सूरत में जो उनका पहला वाला डाटा है वो आपको इस नए डेटाबेस के अंदर इंक्लूड करना है। तो यू नीड टू बेसिकली लोड दैट डाटा
into the new database system, or if there are certain application programs जो कि वो चाहते हैं कि आप इस नए database system के साथ काम करें, तो then the application developers will be modifying or converting those programs to work with the new database systems. तो मतलब ये एक important activity है. मसलन जैसे आपका फर्ज करें आपके पहले एक्सेल शीट्स में डाटा पड़ा हुआ था सारा, ठीक है, देन अब आप जो रिलेशनल डेटाबेस में उसको लाना चाहते हैं और सपोज यू हैव माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, तो देन देयर आर सर्टेन यूटिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आप उस एक्सेल शीट्स में से डाटा उठाएंगे और उनको कॉपी कर लेंगे जो आपने टेबल उसके लिए बनाया होगा. तो इसी तरह इवन टेक्स्ट फाइल से भी आप कॉपी कर सकते हैं, या किसी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फाइल थी जैसे एक्सेस में पहले डाटा था उससे आप लोड कर सकते हैं. तो मतलब देयर आर सर्टेन यूटिलिटीज अवेलेबल जिनके थ्रू आप ये डाटा लोडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं. इसी तरह सपोज अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपके बने हुए थे और पुराने उस सिस्टम के साथ काम कर रहे थे, एंड यू वांट कि जी स्टिल दीज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स शुड वर्क विद द न्यू डेटाबेस, तो देन यू नीड द डेवलपर नीड्स टू मेक सम चेंजेस इन दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और फिर आप उसके थ्रू जो है उनको कन्वर्ट कर सकते हो, और ये काम जो है इस फेज़ के अंदर होगा. लेकिन कीप इन माइंड दिस फेज़ कुड बी वेरी कॉस्टली. क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी डाटा कन्वर्जन या लोडिंग है उसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितना रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, कितना टाइम इन्वॉल्व है. तो मतलब आपको इस हवाले से भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मसलन फिर उसके लिए कितनी टेक्निकल आपको जो है वो चाहिए एबिलिटीज़, और आपके पास वो स्टाफ है जो इतनी टेक्निकल उसके पास जो है स्किल्स हैं या नहीं है. उसके बाद जो हमारा फेज़ है दैट इज़ टेस्टिंग. अब टेस्टिंग जो फेज़ होता है, टेस्टिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रनिंग द डेटाबेस सिस्टम विद इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स. के मतलब यू नीड टू वेरीफाई कि जो सिस्टम आपने अब बनाया है इट्स वर्किंग अकॉर्डिंगली, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक काम कर रहा है, उसमें किसी किस्म के एरर्स तो नहीं आ रहे. मसलन अगर मैं सेव का फॉर्म बनाया था और वो स्टूडेंट का डाटा सेव करता था, एक रिकॉर्ड सेव करता था, तो आया कि वाकई वो जब मैं सेव का बटन क्लिक करता हूं तो वो वाकई जो है रिकॉर्ड सेव हो जाता है स्टूडेंट के टेबल में, ये नहीं. अगर मैं रिपोर्ट जनरेट करता हूं तो रिपोर्ट्स वो प्रॉपरली बन रही हैं या नहीं बन रही, या आपके जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो भी डाटाबेस इन्वॉल्व है, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स आपने लगाए थे एंड सो ऑन, तो मतलब वो प्रॉपरली आपका ओवरऑल सिस्टम जो है उसकी हर एक कंपोनेंट को टेस्ट करना जो है वो इस फेज़ के अंदर आता है. कीप इन माइंड मतलब ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट ये भी एरिया है कि अगर आप मतलब टेस्टिंग का मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो स्पेसिफिक लोग होते हैं दैट आर बेसिकली पार्ट ऑफ दिस टेस्टिंग टीम, और उनका काम सिर्फ यही होता है कि उन्होंने टेस्टिंग करनी होती है. लेकिन इट डिपेंड्स कि जी मतलब वो आपकी किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है. तो टेस्टिंग एक बहुत वास्ट एरिया है. आप अगर इसकी डिटेल में जाना चाहें तो आपको मतलब एक इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्टिंग स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं और उनको किस तरह अप्लाई किया जाता है. एंड वन शुड हैव specific technical knowledge for working in this particular field. कि जी एक टेस्टर एज अ टेस्टर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करते हैं तो you need to have specific skills. Keep in mind testing cannot show absence of faults, it can show only the software faults are present. मतलब ये तो अब नहीं हो सकता ना कि टेस्टिंग यही दिखाएगी अगर कि जी आपको कोई एरर है तो वो दिखाएगी. Demonstrates that database and application programs appear to be working according to the requirements. It's very simple. मिसाल के तौर पे मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ टेस्टिंग की कि मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर आपको कहा गया कैलकुलेटर बनाए, ठीक है. अच्छा, अब टेस्टिंग बड़ी मुख्तलिफ लेवल की हो सकती है. मतलब अब यही है जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग बहुत वास्ट फील्ड है, और ये भी एक ऐसी फील्ड है जैसे मैं अभी आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो है इसके ऊपर बहुत अब रिसर्च हो रही है, बहुत काम हो रहा है. इसी तरह जो टेस्टिंग है ये भी एक ऐसा एरिया है जो निगलेक्टेड एरिया है और इसमें भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. और सॉफ्टवेयर अगर प्रॉपरली टेस्ट हो तो उसके अंदर बहुत कम जो है वो इश्यूज़ रह जाएंगे. और
आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है दैट वुड बी वेरी गुड। तो टेस्टिंग जो है ये एक बहुत क्रिटिकल फेज है जो कि बड़ा comprehensively जो है that should be performed on the software, या जो भी आपका database project है या कोई भी और project है उसके ऊपर अगर perform किया जाए तो आप अपनी quality को जो है वो उसको बेहतर बना सकते हैं। अब इसमें टेस्टिंग के हवाले से जो मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा था, सपोज देखें मसलन आपने कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर लिखा। नाउ द बेसिक टेस्ट आर कि मसलन फ़र्ज़ करें आपने कहा जी मेरा जो कैलकुलेटर है दैट परफॉर्म्स बेसिक अर्थमेटिक ऑप्शंस कि जी आपके दो नंबर्स को ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, डिवाइड करता है या मल्टीप्लाई करता है। अब जो बेसिक आपके ऑपरेशंस हैं, मसलन फ़र्ज़ करें जी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू परफॉर्म बेसिक टेस्ट। तो बेसिक टेस्ट ये है जी कि आपने कहा जी कि जे 5 + 5 शुड रिटर्न 10, तो इट मीन्स कि आपका जो 5 + 5 का रिजल्ट उस सॉफ्टवेयर में भी कितना आना चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन लिखी उसमें भी कितना आना चाहिए, 10। इसी तरह आपने माइनस को भी वेरीफाई कर लेना है, मल्टीप्लाई को भी करना है, डिवाइड को भी करना है, ठीक है। अब फर्ज करें जो डिवाइड है, अब मसलन फ़र्ज़ करें कि जैसे हमें पता है कि जो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी या एक नॉट डिफाइंड, तो अब आपके कैलकुलेटर को भी एग्जैक्टली वही काम करना चाहिए कि अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 0 करता हूं तो देर अब मतलब ये तो उसकी बेसिक वर्किंग है ना कि अगर ये जो डिवीजन है इसका रिजल्ट अनडिफाइंड आना चाहिए, तो आपके कैलकुलेटर जो आपने सॉफ्टवेयर लिखा उसमें ये फीचर होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट सोच सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस टास्क से स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो मतलब आपने जो भी जिस चीज़ के लिए भी वो काम किया है वो आपको जो है आपने उसमें वो प्रोवाइड करना होता है। तो मतलब यू हैव टू टेस्ट दैट कंप्लीट प्रोजेक्ट, उसको बड़े कम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने जो है उसको टेस्ट करना होता है। इसी तरह यू शुड आल्सो टेस्ट फॉर यूजेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। यूजेबिलिटी से ये मुराद है कि मतलब इज़ इट ईजी टू यूज़, मतलब ये तो नहीं है कि यूज़र को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसको मतलब ये ना हो कि अब देखें डेटाबेस सिस्टम जो है वो किस लिए डेवलप किया गया, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को, और प्रोडक्टिविटी कौन बेसिकली प्रोडक्टिविटी किससे आती है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ हैं और उन एम्प्लॉइज़ ने सिस्टम को यूज़ करना है, और सिस्टम को के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए की गई कि ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। और फ़र्ज़ करें अब उस सिस्टम को यूज़ करना ही बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो बजाय उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने के बल्कि उल्टा जो है पहले वो अगर 50 क्लाइंट्स का वो जो है वो काम कर लेते थे एक दिन में 8 घंटे में, तो अब उस सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी की वजह से उन 50 के बजाय अगर 40 वो हो गए हैं क्लाइंट, उनको अगर वो डाटा जो प्रोसेस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी मतलब परफॉर्म करते हैं, तो फिर तो इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि जी आपने उसका इस हवाले से भी टेस्ट करना है कि उसकी यूजेबिलिटी टेस्ट ओके है या नहीं है। कीप इन माइंड कि एवेलुएशन कंडक्टेड अगेंस्ट अ यूजेबिलिटी स्पेसिफिकेशन, कि जी यू एवेलुएट कि जी उसकी यूजेबिलिटी स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो what kind of criteria is there for evaluation के आया कि वो चीज़ है या नहीं, तो there are certain factors जैसे learnability है कि जी how easy it is to learn to work with this new system, कि जी आपने एक being a user, एक आम यूज़र के आपने इस सिस्टम के साथ अब इंटरेक्ट करना है, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जो वो पहले में भी किसी और तरीके से कर रहे थे, या पेपर बेस्ड या फाइल बेस्ड एप्लीकेशन मतलब कोई सिस्टम यूज़ कर रहे थे, तो कितना इजी है, परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आया है एज़ कम्पेयर टू पिछले या आपके सिस्टम में, तो मतलब उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई या नहीं। तो मतलब दीज आर दी क्राइटेरियाज के जिनके ऊपर हम फिर डिसीजन कर सकेंगे कि हाँ जी जो हमने नया सिस्टम बनाया है वो हमारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को उसने अचीव किया है। तो मिशन ऑब्जेक्टिव यही होंगे कि जी हम इससे जो है अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बिज़नेस है दैट विल ग्रो, और वो ज़्यादा लोगों को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकेंगे। तीसरा जो फैक्टर है, क्राइटेरिया है, दैट इज़ रोबस्टनेस, मीन्स के अगर कोई एरर्स भी आ जाते हैं तो हाउ रोबस्ट इज़ दिस सिस्टम, वो स्टिल कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। रिकवरेबिलिटी के इन केस ऑफ एरर्स हाउ फास्ट दिस
सिस्टम रिकवर्स फ्रॉम दोज एरर्स, और अडॉप्टेबिलिटी के अगर कोई चेंजेस आते हैं, कोई मॉडिफिकेशंस आती हैं, तो ये कितने सिस्टम में अडॉप्टेबिलिटी की जो है वो सलाहियत है कि उस नए सिस्टम जो चेंजेस हैं उनको उसके अंदर अपने अंदर जो है वो इंक्लूड कर सके। तो ये सारे क्राइटेरिया फैक्टर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं टू एवेलुएट अ सर्टन जो है डेटाबेस सिस्टम। जो आखिरी हमारा फेज है दैट इज ऑपरेशनल मेंटेनेंस। एंड ऑपरेशनल मेंटेनेंस इज कि जी अब आपका सिस्टम आपने टेस्ट भी करके, अब देखें टेस्टिंग भी कीप इन माइंड, टेस्टिंग भी मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है कि टेस्टिंग आप जो कंपनी डेवलप कर रही होती है वो भी कर सकती है, और वो ये भी कर सकते हैं कि वो एक वर्जन जो है वो कस्टमर को दे दें और कस्टमर फिर उसको टेस्ट करे और देखे कि उसमें उसको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये पैरेलल में भी किया जा सकता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि फिर मतलब वो अपना पुराना सिस्टम भी चला रहे होते हैं साथ, और नया सिस्टम भी चला रहे होते हैं, लेकिन मतलब ये देखा जाएगा कि आया कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये सिस्टम हमारा जो हमें रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए थी उसको फुलफिल कर रहा है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो समझें कि उन्हें डाउट हो कि नहीं ये इसमें शायद हमारे यूज़र्स ईजी नहीं है इसके साथ, तो वो मे भी फिर पैरेलल में दोनों सिस्टम चला सकें। तो जब आपने अब आप समझना शुरू हो गए कि जी आप हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है, वो इस स्टेट में आ गया है कि इट शुड बी used in that particular organization, तो then you deploy that system in the organization। आप उस organization को सारा सेटअप करके दे देते हैं, now that organization start using that system। ठीक है जी, उसने जब यूज़ करना शुरू कर दिया, एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आ गया आपका सिस्टम, तो then you need to monitor that system। अब आपने उस सिस्टम को मॉनिटर करना है and maintaining the database system फॉलोइंग इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, अब आपने उसको मॉनिटर करना है कि आया कि उसमें कोई एरर्स नहीं आ रहे, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें कोई किसी किस्म के इश्यूज तो नहीं आ रहे, एंड यू नीड टू मेंटेन दैट सिस्टम। ओके, अब मॉनिटरिंग के हवाले से अगर बात करें तो मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट किस हवाले से कि हाउ बेसिकली इट हैज़ अफेक्टेड द परफॉर्मेंस। ठीक है जी, कि परफॉर्मेंस अब बेहतर हुई है या नहीं। ठीक है, इफ़ परफॉर्मेंस फॉल्स बिलो अ सर्टन थ्रेशोल्ड, तो देन मतलब देयर माइट बी अ नीड टू ट्यून द सिस्टम और रीऑर्गेनाइज द डेटाबेस। अगर आप समझते हैं कि जी परफॉर्मेंस में इशू आ रहा है, क्यूरीज बहुत टाइम लगा रही हैं, या आपका जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो डिले आ रहा है, तो देन देयर माइट बी अ नीड कि जी यू नीड टू रीऑर्गेनाइज द डेटाबेस। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि जी जब आपके पास तभी ये चीज़ें आप कर पाओगे जब आप उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे होगे। इसी तरह मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग डेटाबेस एप्लीकेशंस व्हेन रिक्वायर्ड कि जी सपोज यू नीड टू अपग्रेड द डेटाबेस एप्लीकेशन यू हैव टू, या कोई और आपके इसी तरह नई रिक्वायरमेंट्स आपकी आ जाती हैं। मसलन एक चीज़ हम अभी जैसे मैंने कहा कि मैं समराइज़ करूंगा जब बाद में, अभी हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे गौर कर रहे हैं, तो जब हम आगे जाके इसको समराइज़ करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि बाज़ औक़ात आज आपने एक सिस्टम बना लिया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देर आर सम चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन कि जी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई नए बिजनेस शुरू कर देती है या कुछ के अंदर उनकी एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं, तो डेफिनेटली दीज एक्टिविटीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट डेटाबेस सिस्टम। तो देन योर सिस्टम शुड बी स्केलेबल। स्केलेबल से मुराद कि आप उस सिस्टम के अंदर नई चेंजेस जो है इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो वो ईजिली हो जाएं, तो आप फिर उसके अंदर वो जो नए फिर उसके हिसाब से एंटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन, फिर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चाहिए वो आपने करने हैं। तो कीप इन माइंड कि जो ऑपरेशनल मेंटेनेंस है दैट इज़ एन ऑन गोइंग एक्टिविटी विच कीप्स ऑन गोइंग जब तक आपका ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। आपको मेंटेनेंस किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो चलती रहती है। कभी आपकी एप्लीकेशन के अपग्रेड्स आएंगे, कभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कभी कोई नई आपकी चेंजेस हुई आपने उनको, कभी परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे, कभी कोई एरर्स आएंगे एंड सो ऑन। सो यू नीड टू बी ऑन योर टोज। तो दिस इज इट जी, ये हमारा जो है डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के तमाम फेजेस जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो थोड़ा सा हम अपनी डिस्कशन को आगे ले जाके फिर हम जो है फिर सारी चीज़ को सम अप करेंगे। अब हम देखते हैं कि देयर आर केस टूल्स। ठीक है,
केस टूल्स जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, मतलब कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो मुख्तलिफ फेजेस में आपको मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ जो आपकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हैं वो परफॉर्म करने में आपको ईज़ प्रोवाइड करते हैं, कि बजाय आप उनको कोई मैनुअली कोई पेपर के ऊपर करें, दोज टूल्स विल हेल्प you to perform those activities efficiently। और उनमें से फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि आप उन टूल्स के थ्रू परफॉर्म करें तो वो फिर उनको वैलिडेट करना, उनको वेरीफाई करना, दैट बिकम्स वेरी ईजी। अब इसमें बहुत सारे जो है सपोर्ट हो सकती है, मतलब केस टूल्स मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ टूल्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे डाटा डिक्शनरी की सपोर्ट दे सकते हैं टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटाबेस सिस्टम्स, डाटा के जिसमें कंप्लीट आप डाटा जो भी डाटाबेस के उसके हवाले से सिस्टम के हवाले से होगा वो आप एक जगह पे उसको स्टोर कर लें। डिज़ाइन टूल्स टू सपोर्ट डाटा एनालिसिस, डिज़ाइनिंग के लिए टूल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं, हम उनका जिक्र भी शायद करेंगे थोड़ा बहुत। टूल्स टू परमिट डेवलपमेंट मॉडल एंड कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डाटा मॉडल, तो मतलब इस हवाले से भी बहुत सारे आपके जो है वो टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको जो है वो बेनिफिट कर सकते हैं, जो आपको प्रोविजन दे सकते हैं। टूल्स टू इनेबल प्रोटोटाइपिंग ऑफ एप्लीकेशन, सो मतलब फॉर ऑलमोस्ट ईच फेज देर आर सर्टन टूल्स, एंड मतलब जितने ज़्यादा आप इन टूल्स को यूज़ करेंगे आप इफ़ेक्टिवली उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को, उन फेजेस के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो केस टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो जितने ज़्यादा आप इन केस टूल्स की मदद लेंगे देन थिंग्स विल बिकम ईजी एंड यू विल बी फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड। केस टूल्स हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर उन बेनिफिट्स की बात की जाए तो पहली बात है कि स्टैंडर्ड्स, तो मतलब केस टूल विल ऑलवेज बी फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड एंड यू जब आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा कि वो फिर आपके तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से फिर आप एक ही किसी भी हवाले से कोई एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होगे। इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि चूंकि आपकी डाटा डिक्शनरी के अंदर जितने चीज़ें पड़ी होंगी दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, तो एज अ होल वो इंटीग्रेटेड होंगे, मतलब एक ही चीज़ होगी। सपोर्ट फॉर स्टैंडर्ड मेथड्स, स्टैंडर्ड मेथड से मुराद ये है कि कोई भी किसी चीज़ के भी मेथड्स जो हैं फिर वो स्टैंडर्ड जो मेथड्स डिफाइंड हैं उस टूल के अंदर आप वही यूज़ कर रहे होगे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि कंसिस्टेंसी आपकी, मतलब आप एक कंसिस्टेंट वे में सारा काम करोगे। और फाइनली जो आखिरी चीज़ है जो बेनिफिट के ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं कि बाज़ औक़ात मसलन जैसे आप कुछ टूल्स ऐसे हैं कि अगर आप उसमें कोई मॉडलिंग कर लें तो वो आपको एक क्लिक के ऊपर जो है वो कोड भी जनरेट करके दे सकता है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर। तो मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी ऑटोमेटेड भी हो सकती हैं उनके थ्रू, अगर यू हैव फॉलोड द सर्टन प्रोसीजर के मसलन आपने एक डाटा मॉडल बना लिया, किसी एक उसका कोई लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन जो है आपने बना लिया उस टूल के अंदर, तो देन दिस टूल प्रोवाइड्स यू द एबिलिटी कि जी वो आपको अगला जो कोडिंग का कुछ काम है वो ऑटोमेटेड कर दे, या इसी तरह कुछ एक्टिविटीज़ अगर आपने प्रॉपरली कर ली तो वो अगले जो एक्टिविटीज़ हैं दे कुड बी ऑटोमेटेड विद द हेल्प ऑफ टूल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब अगर आप इनको देखें तो टूल्स जो केस टूल्स हैं दे कुड बी वेरी हेल्पफुल इन दिस होल डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। There are different type of case tools. Some are called uppercase tools और lower case tools हैं और integrated case tools हैं। जो upper case tools हैं upper case tools are used in the earlier phases of the डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे आपके अपर केस है दे आर एज्यूम्ड के जी वो आपके डेटाबेस प्लानिंग, सिस्टम डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस और डिज़ाइन के तक काम करते हैं। और जो लोअर केस टूल्स हैं वो आपके जो लेटर स्टेजेस हैं या फेजेस हैं डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, जैसे इंप्लीमेंटेशन हो गया, डाटा कन्वर्जन एंड लोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, ऑपरेशनल मेंटेनेंस हो गया, वो इन फेजेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। और इंटीग्रेटेड केस का ये है कि दे प्रोवाइड यू ऑल बेसिकली द सपोर्ट फॉर ऑल द फेजेस। तो इस किस्म के टूल जो है वो क्या कहलाते हैं, वो इंटीग्रेटेड केस टूल्स कहलाते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल, हम इनकी जो है वो डिटेल में नहीं जाते फ़िलहाल, लेकिन यू कैन जस्ट गूगल ऑन और उसमें आपको बहुत सारे केस टूल्स जो है वो मिल जाएंगे। और ख़ास तौर पे
हम देखेंगे कि मसलन चूँकि हमारे जो सर्टन हमारा जैसे डिज़ाइन है उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट विजियो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या UML अगर आप UML के थ्रू अपना काम कर रहे हैं तो आप जो है रैशनल रोज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ टूल्स हैं दैट आर अवेलेबल। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है ओवरऑल प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारे टूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, दैट इज़ डाटा एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इफ़ यू रिमेंबर दैट वी डिफरेंशिएटेड दोज टू कॉन्सेप्ट्स कि जी हमारी डाटा एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट, एंड देयर आर सर्टन रोल्स जिसको फिर हमने स्पेसिफाई किया था कि जो डाटा एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय द डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, और जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड दोज आर वेरी क्रिटिकल रोल्स इन एनी टीम, कोई भी जो इस हवाले से काम कर रही है। हम वन बाय वन इनको दोबारा देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, द डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉर्पोरेट डाटा एंड द कॉर्पोरेट डाटाबेस रिस्पेक्टिवली। जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो कॉर्पोरेट डाटा को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, और जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है he or she manages the database कॉर्पोरेट डाटाबेस फॉर अ पर्टिकुलर, मतलब जिस भी कॉर्पोरेट की हम बात कर रहे हैं। तो कीप इन माइंड कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज मोर कंसर्न विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डाटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। उसका काम जो है वो शुरू वाले फेजेस के साथ है, क्योंकि उसने डिसाइड करना है कौन सा डाटा होगा, उसका कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन और इवन लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन तक जो है इसका काम होता है। तो मसलन अगर हम डिफाइन करें फेजेस को, तो जो आपका डाटाबेस प्लानिंग है, सिस्टम डेफिनेशन है, एंड सो ऑन, जो आपका रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस है, और डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन और लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, उस हद तक जो है ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, वो उसमें बड़े भरपूर तरीके से अपना काम करता है। लेकिन जो DBA है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज़ कंसर्न मोर विद द लेटर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें आपका लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन से अगर स्टार्ट करके फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करें, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम जो है प्रोटोटाइपिंग के हवाले से बात करें, प्रोटोटाइपिंग के बाद हम या प्रोटोटाइपिंग उससे पहले आ रही है तो टेस्टिंग की बात करें या ऑपरेशनल मेंटेनेंस की बात करें, तो वहाँ पे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशल जो है वो रोल होता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ डाटा रिसोर्सेज, लाइक डाटाबेस प्लानिंग हो गई, डाटा डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि किसी भी किस्म के स्टैंडर्ड जो उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होंगे उनके हवाले से उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग सर्टन टास्क, कि क्या पॉलिसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, एक्सेस कैसे देनी है, एंड सो ऑन, क्या प्रोसीजर है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, रिकवरी परफॉर्म करनी है तो कैसे करनी है, मेंटेनेंस करनी है तो कैसे करनी है, या मतलब जो भी कोई प्रोसीजर्स उन एक्टिविटीज़ के हवाले से हो सकते हैं। एंड कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, जैसा कि मैं पहले कवर कर चुका हूँ। On the other hand, database administration जो है that is concerned with the management of physical realization of a database system. And what does it include? It includes physical database design and implementation, setting security and integrity constraints या controls, कि जी हमने क्या क्या basically किस किस्म के integrity constraints हैं इसके ऊपर और integrity controls हैं, ठीक है, और उनकी भी implementation है कि कैसे उनको टेक्निकली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि मैंने ऑपरेशनल मेंटेनेंस में हमने देखा था, एंड रीऑर्गेनाइजिंग द डाटाबेस। अब एक और वाज़ेह फ़र्क जो हम इन दोनों के दरमियान देखें तो वो हमें नज़र आएगा कि जो हमारा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है दैट इज़ टाइप ऑफ अ मैनेजेरियल स्किल्स उसके पास होती हैं और उसने मतलब उस मैनेजमेंट के हवाले से काम करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसका जो रोल है दैट इज़ मोर टेक्निकल, उसको DBMS और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है और जो टेक्निकलिटीज़ हैं सारी उसका ताल्लुक उस चीज़ से ज़्यादा होगा।
जो ये स्लाइड है आपकी, जस्ट वी हैव कंपेयर्ड बोथ दीज रोल्स के जी डाटा एडमिनिस्ट्रेशन और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें, इनको कंपेयर करना चाहें कि इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, तो इस टेबल में आपको नज़र आएंगे। अगर हम डाटा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक IS इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्लानिंग, जबकि जो डाटा पहले हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं और फिर उनको देख लेते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मतलब इसकी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग, जो प्लानिंग है जैसे बताया था, वो इसका काम है डिटरमिन्स लॉन्ग टर्म गोल्स, उस सिस्टम के लॉन्ग टर्म गोल्स इसने डिटरमिन करने हैं, इन्फोर्सेस स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होंगे वो इसने इन्फोर्स करने हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि उसने जस्ट डिफाइन करने हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट किसने करना होगा, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने करना होगा। डिटरमिन्स डाटा रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी डाटा रिक्वायरमेंट्स है वो ये डिटरमिन करेगा। डेवलप्स कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, develops and maintains corporate data model, coordinates system development, managerial orientation and DBMS independent। इसका कोई टेक्निकली इसका कोई रोल नहीं होता, मतलब इसको उन चीज़ों से इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो इट इवैल्यूएट्स न्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेफिनेटली उसका पहला ये रोल जो स्टार्ट होगा वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन से पहले कि उसने देखना है कि जी कौन सा DBMS हम यूज़ करें। एग्जीक्यूट्स प्लान्स टू अचीव गोल्स, जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं उनकी एग्जीक्यूशन करेगा, उनको प्लान करेगा एक्टिविटीज़ को ताकि उन गोल्स को अचीव किया जा सके। इन्फोर्सेस स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इम्प्लीमेंट्स डाटा रिक्वायरमेंट्स, देखें वो डिटरमिन कर रहा था, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। develops logical and physical database design, implements physical database design, monitors and controls database, टेक्निकल ओरिएंटेशन है इसकी, और ये DBMS के ऊपर, मतलब इसका नॉलेज जो है वो DBMS या ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम वो जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है इसका किरदार ज़्यादा होता है। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी थ्योरी से भरपूर ये चैप्टर था, लेकिन हमने इसको बड़ी डिटेल के साथ कवर किया। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि मे बी एट टाइम्स यू कुड फील कि ये अजीब सा मतलब इसमें मटेरियल है, लेकिन कीप इन माइंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल कि अगर आप इन फेजेस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और आप इन फेजेस के अंदर जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं तो यू विल ऑलवेज एंड अप विद अ बेटर प्रोडक्ट, और एक अच्छा जो प्रोजेक्ट जो है वो आपका आउटकम की फॉर्म में, मतलब आउटकम आएगी उस जिस प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप डेटाबेस के प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं या कोई और। कीप इन माइंड कि जी हमने तो चूंकि स्पेसिफिकली इसको इसी तरह पढ़ा है कि हमने डेटाबेस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन दिस कुड बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब आप किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं तो अगर आप इन फेजेस को इस्तेमाल करेंगे तो देन यू विल एंड अप विद समथिंग वेरी गुड। तो अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ मतलब कंटेंट्स, लेकिन उसका भी इसके फेजेस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब देखें कि हम तकरीबन हर फेज़ के अंदर जो है हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कोई वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म की है। जैसे अर्ली स्टेजेस के अंदर देखें तो हम उस डेटाबेस सिस्टम के हवाले से, उसके यूज़र्स के हवाले से, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में हम कुछ टेक्निकल, हमें शायद कोई जो है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, जैसा कि DBMS कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर, किसकी फ़ीचर ज़्यादा अच्छी हैं, किसकी फ़ीचर ज़्यादा बेहतर हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए स्ट्रेटजीज कोई क्या क्या होनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, तो उसके ऊपर जो है हम कुछ रिक्वायरमेंट्स मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम ऑपरेशनल मेंटेनेंस के हवाले से जो है वो डिफरेंट किस्म की हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन कीप इन माइंड के तकरीबन हमें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ फेजेस के अंदर किसी किस्म की रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमने कलेक्ट करनी होती हैं। तो जो अगला हमारा चैप्टर है दैट फोकसेस ऑन दीज फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के जी हमने कोई भी जो फैक्ट्स जो है फाइंड आउट करने हैं उनके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, कौन कौन सी इफेक्टिव ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम वो फैक्ट्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा
और इसका मैंने आपको इम्पैक्ट बता दिया कि कोई भी प्रोजेक्ट आप करना चाहें तो अगर आप इस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं तो यू विल ऑलवेज एंड अप विद अ गुड आउटकम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो और स्पेसिफिकली जब डेटाबेस का प्रोजेक्ट आप करोगे तो आपने इसको डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। Let's formally start with the chapter number 10 and that is fact finding techniques। जो फैक्ट फाइंडिंग, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि फैक्ट फाइंडिंग आपको तकरीबन जो है यू नीड टू फाइंड द फैक्ट्स, और जो भी आपको डेटाबेस सिस्टम के हवाले से चाहे आपकी एप्लीकेशंस हैं या जो भी हैं उनके लिए आपने जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी, आपको कुछ इफेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि आप जो है वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट और वही फैक्ट्स आप कलेक्ट करें जो वाकई रियल लाइफ में या उधर उसमें एग्जिस्ट करते हैं। कीप इन माइंड के द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेक्निक्स सच एज इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर्स टू कलेक्ट फैक्ट्स अबाउट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड preferences। तो मतलब you need to follow this formal process of fact finding and fact finding is a process for this, और उसमें आप किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप सिस्टम्स के बारे में करो, चाहे आप DBMS के बारे में करो, चाहे आप किसी जो है वो यूज़र्स के बारे में करो, टेस्टिंग के बारे में करो एंड सो ऑन। मतलब मैंने जैसे बताया कि ये आपकी टेक्निक्स कुड बी अप्लाइड आर अप्लाइड इन ऑलमोस्ट एवरी फेज, लेकिन इन डिफरेंट फॉर्म्स के जी उसमें हर फेज में आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। व्हेन आर दीज टेक्निक्स यूज्ड? अब कीप इन माइंड as I have discussed earlier, these techniques are used throughout the database application life cycle and crucially जो है it's very crucial के जी to in the early stages of the database planning, system definition and requirements collection और analysis stage। मतलब इनके अंदर तो इसका रोल और ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। मैं अगेन जैसे मैं पहले भी डिस्कस किया था कि मैं आखिर में सम अप करूंगा जब मैं ये चैप्टर्स आपका 10 ख़त्म कर लूँगा तो देन आई विल कम अप विद अ समरी अगेन के जी आपको मैं रिलेट करूँगा ये सारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स और इनका आपस में रिलेशनशिप। तो कीप इन माइंड कि जो हमारे पहले फेजेस होते हैं दे आर वेरी क्रूशल, और उसकी वजह क्या है कि अगर आपके पहले फेजेस में आप जो फैक्ट फाइंड करते हो चाहे वो किसी भी हवाले से हैं, अगर वो आप एक्यूरेट नहीं है तो फिर उसका अंजाम क्या होगा कि उसका अंजाम ये होगा कि आपके अगले फेजेस में चूंकि वो इनपुट के तौर पे जा रहे होंगे और आपके जो डिज़ाइन बनेगा वो उस इनपुट के ऊपर बनेगा। इट मीन्स कि अगर आपका कलेक्शन एनालिसिस ही सही नहीं हुआ, जो आपके रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस या वो जो पीछे वाले फेजेस हैं उनका रिजल्ट आपने आउटपुट सही नहीं मिली, तो वो यूज होगी एज इनपुट टू द डिजाइन फेज। डिजाइन सही नहीं बना, डिजाइन जब सही नहीं बना तो उसको इंप्लीमेंट करना है, जब तो इंप्लीमेंट बेशक कर ले लेकिन आपका वो डिजाइन ही सही नहीं है, वो कवर ही नहीं कर रहा था सारी चीजें। अब आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी गलत होगी, इम्प्लीमेंटेशन जब गलत होगी आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग भी आपने की, जो पूरी चीजें ही नहीं है तो बेशक टेस्ट कर लें उसको, ठीक है। तो मतलब जब फिर आप उसको डिप्लॉय करोगे, यूज़र के हवाले करोगे, तो फिर आपको पता चलेगा नहीं ये तो हमने जो चीज़ बना दी है इसके अंदर तो बहुत सारे यूज़र ग्रुप्स को हमने जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको हम भूल गए। तो मतलब इस हवाले से आपको हमेशा इट इज़ रिकमेंडेड कि यू शुड स्पेंड मोर एनर्जी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है जी। तो ये पहले 3-4 फेजेस जो हैं दैट आर वेरी क्रूशल, और उसमें जो है ये फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन हम जैसे देखेंगे कि हर बाकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी यूज़ होती हैं लेकिन डिफरेंट वे में। It enables developers to learn about the terminology, problems, opportunities, constraints, requirements and priorities of the organization and the users of the systems, and what these techniques enable the developer to basically come up with all these issues कि जी terminologies क्या use होती हैं, जब वो फैक्ट फाइंडिंग करेगा उसको पता चलेगा उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे जिसकी वजह से वो डेटाबेस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं नए डेटाबेस सिस्टम में उनके लिए एंड सो ऑन, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एंड प्रायोरिटीज़ क्या हैं एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी डिस्कस होती हैं इसके अंदर। ये अब स्लाइड आपकी जो है ये मुख्तलिफ आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही है कि हर जो
फेज़ है या डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उसके अंदर किस किस्म का डाटा आप कैप्चर करते हैं और किस किस्म की जो फैक्ट फाइंडिंग उसकी आउटकम क्या होती है इन फॉर्म ऑफ सम मतलब डॉक्यूमेंटेशन या क्या उसका आउटकम आता है। तो अगर हम डेटाबेस प्लानिंग की बात करें तो डेटाबेस प्लानिंग में what you do, what kind of data is captured in this phase, उसमें आप जी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करते हो एंड यू मस्ट रिमेंबर कि जी हमें क्या मिलता था, जो इसकी आउटकम है वो क्या होती थी, मिशन स्टेटमेंट एंड मिशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। इसी तरह सिस्टम डेफिनेशन की बात करें, यू डिस्क्राइब मेजर यूजर व्यूज मतलब जॉब रोल्स के ऊपर या एप्लीकेशन या बिजनेस एप्लीकेशन एरिया के ऊपर, और इसमें आप डिफिनेशन ऑफ स्कोप एंड बाउंड्री ऑफ द डेटाबेस एप्लीकेशन और जो भी उसके व्यूज़ हैं वो सारे आप इसके अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। और रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर यूज़र व्यूज़, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को मतलब ये सारी कंसिडर करते हैं। और जो इसकी आउटकम होती है दैट इज़ यूजर्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है। इसी तरह डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर कि जी यूजर्स रिस्पॉन्सेज टू चेकिंग द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द टारगेट DBMS, और जो इसका आउटकम था वो हमारी कंसेप्चुअल या लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन था विच कुड बी इन फॉर्म ऑफ ईयर मॉडल्स, डाटा डिक्शनरी एंड रिलेशनल स्कीमा, और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन भी इसमें हो सकता है। जो एप्लीकेशन डिज़ाइन था, इट इज़ द यूजर्स रिस्पॉन्स टू चेकिंग द इंटरफेस डिज़ाइन कि वो जो एप्लीकेशंस बनाई गई हैं वाकई वो सही हैं या नहीं, वो यूज़र उसके साथ ईजीली मतलब इंटरेक्ट कर सकता है, यूज़र फ्रेंडली हैं या नहीं है, और कुछ स्टैंडर्ड जो हमने रिकमेंडेशंस फॉलो की थी उनको फॉलो किया गया है या नहीं। एप्लीकेशन डिज़ाइन, इसका आउटकम की अगर देखें तो एप्लीकेशन डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड यूज़र इंटरफेस। इसी तरह DBMS सिलेक्शन में फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द टारगेट DBMS और DBMS एवेल्युएशन एंड रिकमेंडेशन कि जी आप सर्टन DBMS को वो स्टडी करते थे और फिर यू कम अप विद अ रिपोर्ट कि जी आप रिकमेंडेशन देते थे कि ये वाला DBMS ले लें। इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन, फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द टारगेट DBMS, लेकिन इसकी एज सच कोई आउटकम वो उस तरह नहीं शो हो रही। डाटा कन्वर्जन एंड लोडिंग हमने डिस्कस किया था, टेस्टिंग को डिस्कस किया था, ऑपरेशनल मेंटेनेंस को यूज़ किया था। तो टेस्टिंग के अंदर टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट के क्या आपने एनालाइज किया कि मसलन एक टेस्ट परफॉर्म किया उसका रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट से आप एनालिसिस करोगे अच्छा जो हमने सिस्टम बनाया वो वाकई वो जो वही काम कर रहा है जिसके लिए हमने बनाया था। जो आपके ऑपरेशनल मेंटेनेंस है उसके अंदर यूज़र मैनुअल्स हो सकते हैं, एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस रिजल्ट आ सकते हैं ताकि आप जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सको कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। मॉडिफाइड यूज़र रिक्वायरमेंट्स एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन, अगर कोई नई चेंजेस उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है तो यू नीड टू मॉडिफाई द रिक्वायरमेंट्स एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन एज वेल। ओके, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स दैट आर बीइंग यूज्ड। अब मतलब सादा अल्फाज में आपने देखें, हम जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उस सारे का मकसद क्या था कि हमने डेटाबेस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, और वो जो इश्यूज जो हमने डिस्कस किए थे ना सॉफ्टवेयर डिप्रेशन या सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अंदर, हमने मतलब उस किस्म की चीज़ों से अवॉइड करना है। तो उसके लिए हमने कहा था जी अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज़ करेंगे तो देन इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। अब मसला ये है कि हर फेज़ के अंदर यू नीड टू कलेक्ट सर्टन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आपने फैक्ट्स फाइंड करने हैं, और फैक्ट्स फाइंड किस तरह करने हैं कि आपने पहले तो सिस्टम सारे को समझना है कि किसके लिए आपने वो डेटाबेस सिस्टम बनाना है, उस डेटाबेस सिस्टम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में मतलब एंटिटीज़ कौन सी हैं जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है, उनके रिलेशनशिप्स, कौन कौन से यूज़र्स हैं, हर यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने जॉब रोल्स हैं and so on. So these fact finding techniques will be very useful and you will be using these techniques in those individual phases. तो अब हम देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमनली हमारी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स हैं, आई होप कि आपने इनमें से मतलब ये बहुत इजी है इस हवाले से कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, वी जस्ट विल गो थ्रू इट वेरी क्विकली। तो इसमें आप देखें तो आपकी जो टेक्निक्स हैं मोस्टली यूज्ड वो उसमें एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंटेशन है कि जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप डेटाबेस बनाने जा रहे होंगे उनकी जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको एग्जामिन कर लें, उसको स्टडी कर लें, आपको उस सिस्टम की एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। देन इंटरव्यूइंग,
अ वेरी कॉमन एंड मोस्ट यूजफुल टेक्निक हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू करते हैं आप लोगों को, ऑब्जर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑपरेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप सिस्टम डेवलप करना जा रहे हैं, यू कैन ऑब्जर्व द ऑपरेशंस ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन, या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चले जाते हैं, उसको देखते हैं कैसे डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं एंड सो ऑन। आप उसकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से मतलब बड़ी क्लियरली करते हैं। रिसर्च इज़ अनदर ऑप्शन जो कि फैक्ट फाइंडिंग के लिए यूज़ होती है। और फाइनली क्वेश्चनेयर्स हैं। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं। आई होप कि इनमें आपको किसी किस्म का ऑलरेडी भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये बड़ी बेसिक्स है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। Examining documentation can be useful to gain some insight as how the need for a database arose। मसलन आपने फ़र्ज़ करें उनकी जितनी भी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो आपने स्टडी किए, जो इश्यूज उनके आ रहे थे उनको स्टडी किया, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स को, ईमेल या कंप्लेंट्स एंड सो ऑन। तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि इनको क्या क्या इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से ये जो है सिस्टम नया वाला जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट को भी आइडेंटिफाई करते हो जिसको ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मसलन जहाँ पे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। टू अंडरस्टैंड दी करंट सिस्टम, जो उनका करंट सिस्टम चल रहा है उसको भी आपको समझने में बड़ी आसानी होगी बाय एग्जामिनिंग दी डॉक्यूमेंटेशन दैट इज़ अवेलेबल। लेकिन इसमें अब एक इशू आ सकता है कि बाज़ औक़ात जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इतनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेंटेन नहीं कर रही होती। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं अप्रोप्रिएट, तो देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि जी अगर आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो देन यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन यूजिंग दिस फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन कर रही हैं तो देन इट वॉन्ट बी डिफ़िकल्ट। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, जैसे डिस्क्राइब्स प्रॉब्लम एंड नीड फॉर डेटाबेसेस, कि जी अगर आप अगर ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से इश्यूज थे और क्यों ये डेटाबेस नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो यू कैन यूज सम सोर्सेज ऑफ फॉर दिस, कि जी जैसे इंटरनल मेमोज हैं उनके, ईमेल्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, एम्प्लॉय कस्टमर कंप्लेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, या परफॉर्मेंस व्यू रिपोर्ट्स, आप जो है रिव्यूज रिपोर्ट्स उनको देख सकते हैं। इसी तरह द सेकंड पोर्शन के डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, कि जो उनको करंट सिस्टम की वजह से जो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं वो कैसे आप कर सकते हो। यू कैन लुक एट द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, मिशन स्टेटमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द एंटरप्राइज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज, टास्क और जॉब डिस्क्रिप्शंस, कौन कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं, सैम्पल्स ऑफ कंप्लीटेड मैनुअल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, या कोई कंप्यूटराइज फॉर्म्स या रिपोर्ट्स हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो करंट सिस्टम के हवाले से कि आप इंफॉर्मेशन अगर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपको फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स अगर कोई एग्जिस्ट करती हैं उससे आपको मिल जाएंगी। डाटा डिक्शनरी अगर कोई उन्होंने मतलब ऑलरेडी डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो आप वो जितनी डॉक्यूमेंटेशन होगी, सिस्टम डिज़ाइन है या डॉक्यूमेंटेशन है, यूज़र ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, उनके थ्रू आप ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर इतनी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन नहीं एग्जिस्ट करती, डॉक्यूमेंटेशन नहीं एग्जिस्ट करती, तो देन दिस टेक्निक कुड बेसिकली रिजल्ट इन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। Interviewing is the most commonly used and it is the most useful one। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि फेस टू फेस आप लोगों से बात कर रहे होते हो, ठीक है, और आप जो इंफॉर्मेशन भी फिर कलेक्ट कर रहे होते हो, यू आर वेरी मतलब यू कैन सी दैट पर्सन, उसको आप देख रहे होते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको नज़र आ रही होती है। हम इसके इस हवाले से मतलब इसको बहुत इफेक्टिव जाना जाता है, लेकिन इसमें भी फिर कोई बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द फैक्ट्स। वेरीफाइंग फैक्ट, वेरीफाइंग इस तरह के मसलन फ़र्ज़ करें आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन से कुछ एक इंटरप्रेट कर लिया, लेकिन यू कैन वेरीफाई बाय द इंटरव्यू कि जी हाँ जी ये चीज़ ऐसे ही है या नहीं, तो वो आपको बताएगा हाँ जी ऐसे ही है। ठीक है, क्लैरिफाइंग फैक्ट्स एक चीज़ है जो आपको सही क्लियर नहीं हुई, तो आप इंटरव्यू जिससे ले रहे हैं उससे क्लैरिफाई करवा सकते हैं, उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। आप
क्वेश्चन को रीफ्रेज कर सकते हैं एंड सो ऑन, जनरेटिंग इंथुजियाज्म इन द सेंस के जी यू बेसिकली गिव अ सेंस टू द यूजर्स ऑफ दैट सिस्टम जिनसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको आप ये बेसिकली एक तासर दे रहे होते हो कि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो मतलब वो बड़ा एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट फिर कर सकते हैं। गेटिंग दी एंड यूजर्स इन्वॉल्व, अगर आप एंड यूजर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं तो मतलब ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि आपको एग्जैक्ट फिर इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के हवाले से मिलेंगी, उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से मिलेंगी। आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट्स एंड गैदरिंग आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, तो मतलब बहुत सारे आइडियाज़ या ओपिनियंस आपको उन लोगों से भी अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो यू कैन कम अप विद अ लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। लेकिन हम कुछ इनके प्रोज एंड कॉन्स या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या इश्यूज हैं। तो अब कीप इन माइंड कि जी एडवांटेजेस की अगर बात करें, मैं क्विकली इस टेबल को देख लेते हैं। अलाउज इंटरव्यू टू रिस्पॉन्ड फ्रीली एंड ओपनली टू द क्वेश्चन, मतलब एक तो ये है कि आपने इंटरव्यू जब कर रहे हैं तो उसको जो है इजीली इज फ्री कि जी ही कैन आंसर एनीथिंग, और वो जो भी क्वेश्चंस आप उससे करना चाहते हैं वो करेंगे, तो वो बड़ा फ्रीली उसको रिस्पॉन्ड करेगा और उन क्वेश्चंस का आंसर करेगा। अलाउज इंटरव्यू टू फील पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, you give a sense to that person कि जी you are also part of this project, which could be very helpful in some situations. Allows interview to follow up on interesting comments made by the interviewee, तो मतलब कुछ अगर कमेंट किया है उसने कुछ certain इश्यूज के ऊपर, तो देन द इंटरव्यूअर कैन फॉलो अप और फिर उसको मजीद वो उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अलाउज इंटरव्यूअर टू अडॉप्ट और रीवर्ड क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब ये एक बड़ा पॉजिटिव या इसका एक खास फीचर है इंटरव्यू का कि जी फर्ज करें आप अपना मसलन अगर क्वेश्चन वो आपको आंसर सही नहीं मिला उससे या क्लैरिफाई नहीं हो सका, तो आप अपने क्वेश्चन को रीफ्रेज कर सकते हो ताकि उसको क्लियर आप जो उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो आप कर लो। अलाउज इंटरव्यूअर टू ऑब्जर्व इंटरव्यूइज बॉडी लैंग्वेज एंड दिस आल्सो मतलब गिव्स यू अ चांस कि यू could look at the body language of the interview and then you can also extract कि जी वाकई ये कोई जो बात कर रहा है वो कोई मतलब ये नहीं है कि बात है कुछ और वो बता कुछ और रहा है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस कि यू नीड टू हैव एन अपॉइंटमेंट, और कॉस्टली इन द सेंस कि यू नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो नज़दीक है फिर तो ठीक है, लेकिन उसमें मतलब काफ़ी सारा एंड देयरफॉर मे बी इम्प्रैक्टिकल, तो इस हवाले से इश्यूज हैं। सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द इंटरव्यूअर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इंटरव्यू करने वाला बंदा है ही शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर उसके पास वो नहीं है तो देन ही वॉन्ट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन दैट ही वांट्स। तो फिर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर वो इंटरव्यूअर कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा वीक है तो देन प्रॉब्लम्स होंगे। सक्सेस कैन बी डिपेंडेंट ऑन विलिंगनेस ऑफ इंटरव्यूज टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यूज। बाज़ औक़ात अगर ऐसे लोग सिलेक्ट हो जाएं जो अच्छे एक्टिव नहीं हैं या वो इतने विलिंगनेस अपनी शो नहीं कर रहे टू आंसर दोज क्वेश्चंस, और अगर वो आपको फिर डेफिनेटली आपने इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं से एक्सट्रैक्ट करनी है, एंड इफ दे आर नॉट बेसिकली willing to answer your questions in a way, या वो बहुत आप उनसे बड़ी कोई complex सी चीज़ पूछते हो और वो आपको कोई गोल मोल सा जवाब दे देते हैं, तो फिर बहुत इश्यूज आएंगे। इंटरव्यू की दो टाइप्स हो सकती हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड आपको पता है कि जी जिनके बड़े मतलब एक डाइवर्स किस्म का आंसर हो सकता है, कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन हो सकती है। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो बहुत उसकी शॉर्ट या रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि जी मसलन आप पूछते हो कि यस और नो की फॉर्म में दे दो, या आप उनको ऑप्शंस दे देते हो, इन 3-4 ऑप्शंस में से कोई भी आप दे दो। तो मतलब जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं दे आर गुड इन द सेंस कि जी वो आपको क्लियर एक आंसर मिल जाता है, लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस सम मतलब फॉर सम इश्यूज या सम एस्पेक्ट्स दे आर बेटर कि उसमें फिर वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि वो सारा किस तरह जो है उसको वो मतलब कोई एक्टिविटी है उसकी आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वो उसको एक्सप्लेन करेगा। जो तीसरा हमारा फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से जो हमारा मेथड है या टेक्निक है, दैट इज ऑब्जर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑपरेशन। कि जी दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल कि आप खुद उस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, यू ऑब्जर्व द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, और आप जो जो मसलन अगर, और ये उस सूरत में है कि जब आप समझते हो कि आपकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज
कम्प्लेक्स कोई उसकी है और आप उधर जाके खुद देखते हो। अच्छा, अब इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब अगर आप जो है ना तो खुद भी वो उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या यू जस्ट एक्ट एज अ वॉचर या ऑब्जर्वर के आप वहाँ बैठ के लोगों को देखते रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को आप वॉच आउट करते रहते हैं। ठीक है जी। अब कीप इन माइंड इट्स अ वेरी यूजफुल टेक्निक व्हेन द वैलिडिटी ऑफ डाटा कलेक्टेड इज इन क्वेश्चन, कि मसलन आपने एक पहले कोई डाटा कलेक्ट किया किसी और टेक्निक से एंड यू वांट टू वैलिडेट दैट कि आया कि ये वाकई फैक्ट है या नहीं, तो यू कैन योरसेल्फ गो and watch those activities and then you can say okay हाँ जी ये वाकई जो हमने information या facts collect किए थे ये यही बात है। ठीक है जी। तो ये एक important है। और एक और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये भी है कि when the complexity of a certain aspects of the system prevents a clear explanation by the end users, के बाज़ औक़ात ऐसी भी सिचुएशन होती है कि complexity है किसी एक खास एक्टिविटी की या एस्पेक्ट की, एंड जो आपका एंड यूज़र है दैट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट कम्प्लेक्स फिनोमेना, फिर आप खुद जाके जो है वहाँ पे उस चीज़ को खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। इसके अगेन कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हम देख लेते हैं। इट अलाउज द वैलिडिटी ऑफ फैक्ट्स एंड डाटा टू बी चेक्ड। ऑब्जर्वर कैन सी एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डन। Observer can also obtain the data describing the physical environment of the task. Relatively inexpensive. Observer can do work measurements. ठीक है जी, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। आई होप कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस में, जिनमें एक ये है कि people may knowingly or unknowingly perform differently when being observed। क्या मतलब उनको लोगों को पता चल जाए ना कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मतलब वो वैसे ही शायद थोड़े से उनका बिहेवियर चेंज हो जाए कि ये हमें देख रहा है, तो आप जो जिस तरह नॉर्मल रूटीन में काम करते थे शायद आप उस तरह ना करें। मे मिस ऑब्जर्विंग टास्क्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी और वॉल्यूम नॉर्मल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। अब बाज़ औक़ात ये होता है कोई भी एक्टिविटीज़ जब परफॉर्म हो रही हैं, मसलन कोई भी जॉब एक्टिविटी किसी बंदे की है, तो बाज़ औक़ात उसका नॉर्मल टाइम हो सकता है कि वो एक्टिविटीज़ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में हो रही है, बाज़ औक़ात वो पीक फ्रीक्वेंसी है कि बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं तो कस्टमर्स का बड़ा रश है, तो मतलब उस आप बाज़ औक़ात अगर इस किस्म की सिचुएशन है तो आप मे बी वो फिर मिस भी कर सकते हो, लेकिन यू शुड बी वेरी केयरफुल। सम टास्क मे नॉट ऑलवेज बी परफॉर्म्ड इन द मैनर इन विच दे आर ऑब्जर्व्ड, मे बी impractical. These are some disadvantages. The fourth one is research. Research could be helpful जी के जी मसलन आपने जैसे कोई कंप्यूटर जर्नल्स हैं, कोई रेफरेंस बुक्स आप फॉलो कर लेते हो, या इंटरनेट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द रिसर्च, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप यूज़र ग्रुप्स या कोई बुलेटिन बोर्ड्स हैं फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स, जिस हवाले से भी कोई DBMS या कोई डायग्राम्स या कोई और मतलब टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, आप उनके हवाले से जो है उन स्पेसिफिक यूज़र ग्रुप्स या बुलेटिन बोर्ड्स को भी फॉलो कर सकते हो। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन on how others have solved similar problems, plus whether or not software packages exist to solve or even partially solve the problem. अब मतलब आप रिसर्च करें, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यू कैन कि जी दूसरे लोगों ने अगर कोई किसी ने और ऐसा प्रोजेक्ट किया है तो वो कैसे किया था। कोई सॉफ्टवेयर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो बजाय ये कि हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के वही वाला परचेज कर लें या फ्री ऑफ कॉस्ट अगर है तो मतलब बजाय हम अपना टाइम उस पर लगाएं तो उसको यूज़ कर लें, तो मतलब आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है अगर आप रिसर्च भी करें। इसके भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इट कैन सेव टाइम इफ सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। Researcher can see how others have solved this similar problem or met similar requirements. उसके लिए बड़ा जो है हेल्पफुल होगी ये चीज़। कीप रिसर्चर्स अप टू डेट विद करंट डेवलपमेंट, तो मतलब जो करंट नई जो अपडेट्स आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनसे वो अप टू डेट रहता है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। रिक्वायर्स एक्सेस टू द अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बाज़ औक़ात जर्नल्स जो हैं वो फ्रीली एक्सेस नहीं देते, या कोई सॉफ्टवेयर्स हैं या कोई और इस तरह का मटेरियल है तो उन तक एक्सेस जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, यू हैव टू पे। तो मतलब ये होना चाहिए। मे अल्टीमेटली नॉट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद ही नहीं है, कोई ऑलरेडी किसी ने काम ही नहीं किया, तो देयर विल बी नो बेसिकली हेल्प अवेलेबल फॉर दैट बिकॉज प्रॉब्लम इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड एल्सवेयर। तो मतलब ये आपके इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। जो फाइनल हमारी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है दैट
इज क्वेश्चनेयर्स आपको पता है कि आपने भी देखा होगा, बाज़ औक़ात आपको जो भी जिस बारे में कोई बंदा काम कर रहा है वो आपको मुख्तलिफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो बना के एक पेपर पे और आपको दे सकता है कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर करें। और इनके मतलब अब क्वेश्चनेयर भी बाज़ औक़ात तो फ्री फॉर्मेट हम देखेंगे कि जी या फिक्स फॉर्मेट होते हैं, और उनमें से आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उनमें मतलब एक ओपन कोई लंबा चौड़ा उसका आंसर करें, और अगर फिक्स्ड फॉर्मेट है तो उसमें आपको सर्टन ऑप्शंस दी गई होंगी और उनमें से आप कोई सिलेक्ट करते हैं। अब कीप इन माइंड कि जी इट इज़ यूज्ड टू कंडक्ट सर्वेज थ्रू क्वेश्चनेयर्स and which are special purpose documents that allow facts to be gathered from a large number of people while maintaining some control over their responses. And there are two types of questionnaires, फ्री फॉर्मेट, फिक्स फॉर्मेट। जैसे मैंने बताया फ्री फॉर्मेट में ये कि आप लंबा चौड़ा उनसे कोई आंसर मांग लेते हो, आपने स्पेसेस ब्लैंक जगह दी हुई है और यू कैन फिल एन एनी आंसर। लेकिन ये इस किस्म के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे उसको एलिब्रेट करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जो फिक्स्ड फॉर्मेट है, अब देखिए फ्री फॉर्मेट का इशू ये है कि फ्री फॉर्मेट का जो उसको एनालाइज करना है दैट वुड बी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि हर बंदे का आंसर में भी डिफरेंट हो ड्यू टू द लैंग्वेज, और उसमें बाज़ औक़ात फिर आप उसको मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि वो कहना कुछ और चाह रहा है लेकिन उसने लिख कुछ और दिया है। तो मतलब मे बी इट वॉन्ट बी ईजी कि आप उसको समराइज़ करें, उसको एनालाइज कर सकें। लेकिन जो फिक्स्ड फॉर्मेट है, फिक्स्ड फॉर्मेट में या आप येस नो की फॉर्म में, या आपने सर्टन उसमें से 3 या 4 उसको ऑप्शन दे दी कि जी एग्री, सपोज एग्री, जैसे आप कभी कुछ देखते भी होंगे एग्री, डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, तो मतलब ये सारी ऑप्शंस, तो वो उनमें से जो भी देगा। अब जब आपने नंबर ऑफ यूजर से ये डाटा ले लिया तो इट वुड बी वेरी इजी कि आप फिर उसके ऊपर जो है अपना जो है उसको अच्छे टेबलर फॉर्म में मेंटेन भी कर सकते हैं और उस डाटा को एनालाइज करना भी आसान होगा। लेकिन इसमें भी अब एक इशू ये है कि मसलन क्वेश्चनर्स में चूंकि आपने डाटा दे दिया तो वो लोग अपने जब उनके पास कन्वीनियंस पे वो जो है वो फिल इन करेंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन कोई प्रॉपरली समझ नहीं पाए तो देयर इज़ नो ऑप्शन के वो फिर आप उसको रीफ्रेज कर सकें। तो मतलब वो जैसा उसको अंडरस्टैंड करेंगे उसके मुताबिक जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे। इसी तरह इसमें यह भी होता है कि वो बाज़ औक़ात जो है वो बेहतर इसका रिज़ल्ट आता है। उसकी वजह ये होती है कि मतलब अगर आप उनको थोड़ा सा ये तसल्ली दें कि हम ये आपके कॉन्फिडेंशियल रहेगा जो आपका रिस्पांस है, ये हम अपने तक ही रखेंगे, तो देन दे कम अप विद द रियल फैक्ट्स। लेकिन यही काम आप इंटरव्यू के तो टाइम पे कर रहे हैं तो मे बी दे माइट नॉट बी टेलिंग यू द फैक्ट कि जी वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दे रहे हों। इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है जी। पीपल कैन कंप्लीट एंड रिटर्न क्वेश्चनेयर्स एट देयर कन्वीनियंस, relatively inexpensive way to gather data from a large number of people more likely to provide the real facts, as responses can be kept confidential, responses can be tabulated and analyzed quickly. But on the other hand, if we look at the disadvantages, number of respondents can be low, possibly only 5 to 10%, बिकॉज मतलब आप देखते हैं कि आप जब सर्वे मतलब अगर आप कभी आपने ये काम किया हो, क्वेश्चनर्स दिए हो, तो बहुत सारे लोग आपको फिल करके ही नहीं देते। तो उनमें जो फिल करके भी बाज़ औक़ात देते हैं उनका कंप्लीट नहीं होता, क्वेश्चनर्स में भी रिटर्न इनकम्प्लीट, मे नॉट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अडॉप्ट और रीवर्ड क्वेश्चन दैट हैव बीन मिसइंटरप्रेटेड। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपसे कि मतलब बाज़ औक़ात आपने क्वेश्चन तो पूछा लेकिन वो मिस इंटरप्रेट उसने किया, तो फिर वो मे बी चूँकि आपके पास ऑप्शन तो नहीं है कि आप उसको रीफ्रेज उनको दोबारा से समझा दें कि ये ऐसे है। कैन नॉट ऑब्जर्व एंड एनालाइज द रिस्पोंडेंट्स बॉडी लैंग्वेज, अगेन दैट इज़ अ डिफरेंस फ्रॉम द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू में तो आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं कि यार वाकई ये विलिंग है या ऐसे ही जस्ट वो फिल इन तो नहीं कर रहा मतलब कैजुअली। तो ये जो है ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट। ये हमारा ऑलमोस्ट जो है चैप्टर 10 का भी जो है ये जो मेजर पोर्शन है फैक्ट फाइंडिंग का। इसके बाद जो चैप्टर 10 के अंदर वो हमारी एक वर्क एग्जांपल है कि कैसे हम ड्रीम होम के स्टडी के ऊपर जो है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक जो है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन एक बात अपने जहन में रखें कि जो एक कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है जो कि आपकी इफेक्टिव होगी, बाज़ औक़ात आपको कम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। तो मसलन आप हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन भी जो है उसको ऑब्जर्व करें, उसके बाद आप इंटरव्यूइंग भी करें, इंटरव्यूइंग के बाद
अब स्टिल आपको कुछ चीज़ों में अगर आपने वैलिडेट करनी है तो आप खुद जाके आप यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और आप उस ऑब्जर्वेशन के ऑपरेशंस को खुद जाके जो है ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। अगर स्टिल जो है कुछ इश्यूज हैं तो यू माइट कम अप विद क्वेश्चनर्स, ठीक है। तो मतलब आप इन सारी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन कम अप with all the facts that are required for the database system। और जैसे मैंने बताया कि ये जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं ये मुख्तलिफ फेजेस में आप उनका कम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आज हम देखते हैं कि आज हमने अपने डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को उधर से ही शुरू किया। उसकी डिस्कशन प्रोटोटाइपिंग को हमने डिस्कस किया जो कि ऑप्शनल थी, और इम्प्लीमेंटेशन को हमने डिस्कस किया, डाटा कन्वर्जन एंड लोडिंग को डिस्कस किया, टेस्टिंग को डिस्कस किया, ऑपरेशनल मेंटेनेंस को डिस्कस किया, और फिर हमने ये किया कि हमने फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स जो मुख्तलिफ, और उनमें से मतलब 5 हमने डिस्कस की, जिसमें एग्जामिनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑपरेशन, रिसर्च और क्वेश्चनर। आई होप कि ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर के स्टार्ट में, बिफोर स्टार्टिंग द केस स्टडी, आई विल समराइज, मैं सम अप करूंगा कि ये किस तरह ये चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, और कुछ और जनरल जो डिस्कशन हमारी जो इस ओवरऑल किसी भी डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आप प्लीज़ अपने इन चैप्टर्स को बड़ा क्रिटिकली लें और क्रूशली लें, क्योंकि इनका बड़ा क्रिटिकल रोल है। अगर आप इनको मतलब कोई उस तरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि हाउ दीज टेक्निक्स आर, दिस अप्रोच कुड बी अप्लाइड टू एनी डेटाबेस प्रोजेक्ट या कोई और प्रोजेक्ट है। तो मतलब यू जस्ट नीड टू, कोई मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें ये और ये, लेकिन यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज this system development life cycle and these fact finding techniques could be applied to a real life project। कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, चाहे वो डेटाबेस का प्रोजेक्ट है या कोई और प्रोजेक्ट है, then by using this development life cycle or fact finding techniques you can basically perform better एज कम्पेयर टू मतलब कोई दूसरे एक अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच के बजाय, ताकि आपका जो फिर आउटकम हो वो बहुत अच्छा हो और आप जो है एक अच्छे सक्सेसफुल और कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो है वो आप जो है उसके साथ आ सकें। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।